Good morning, class. This is Mohammad Moin. Hope all you are well. Today I am going to start your new exercise, that is 2.4 of the chapter number 2, polynomials. In the previous lecture we have already completed the previous exercises up to exercise 2.3. Today we have to start your exercise 2.4. Let's start with the question number 1. Question number 1 of exercise 2.4 is determine which of the following polynomial is a factor of. हमें बताना है बेटा इसमें से ये नंबर किसका फैक्टर है. ठीक है बेटा, आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट पार्ट x to the power 3. ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था बेटा कि which one is the factor, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था और द लास्ट एक्सरसाइज वही हमें इसमें करना है बेटा. हमें बताना है कि दिस नंबर x plus 1 is a factor of which polynomial, is a factor of which polynomial. We having 4 parts, 4 में से ये किसका फैक्टर है. हो सकता है चारों का हो सकता है किसी का ना हो सकता है एक या दो किसी का हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये चारों का हो. तो वी नो हाउ टू सॉल्व. हमने किया था इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस क्लास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन था हमारे पास चेक वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द अदर वन. तो हमने कैसे सॉल्व किया था? बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड व्हाट इट्स जीरोस. देन द जीरो इज द वैल्यू ऑफ x. I am going to put the given polynomial. If the remainder will be 0, the answer will be 0. It means it is a factor. और इसका आंसर 0 नहीं आता तो it means इसका फैक्टर नहीं होगा. तो first of all I am going to find the zeros. X plus 1 equal to 0. So x equals to minus 1. Now I am going to put this value in the given polynomial. So x minus 1 equals to minus 1 whole cube plus minus 1 whole square plus minus 1 plus 1. Alright, now the cube of 1 is 1 and having odd power on it, so answer will come in a negative form. The square of negative number is always positive. Yeah, you can say that if the power is the even form on the negative, so answer will come in a positive form, and 1 into 1 is 1, plus minus minus and plus 1. These two are cancel out. कितना गया बेटा? 0. It means x plus 1 is a factor of given polynomial. ये इसका फैक्टर हो जाएगा. Alright? Now look at the next part. I'm going to solve the next part. हो सकता है next वाले में ना आए. I'm going to rub this. इसको rub कर रहा हूँ बेटा. The second part is x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 1. So in this question we have to do like this. Simply first of all I am going to find the zeros of the one. Now I am going to put the value. अब मैं इसको वैल्यू को पुट करूंगा बेटा. Just look here. In the place of x I am going to put the 1 here. Power 4 plus minus 1 power 3 plus minus 1 power 2 plus minus 1 and plus 1. 1 into 1 into 1 is 1, and the power is in the even form, the answer will come in a positive form. If odd power on it, the answer will come in a negative form. Even power, then answer will come in a positive form. Plus minus minus and plus. ठीक है, सॉल्व करते हैं. प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 1, which is not equals to 0. Therefore, in this case, x plus 1 is not a factor of given polynomial. इस केस में ये इसका फैक्टर नहीं होगा. क्लियर हो रहा है बेटा? तो if the answer, the result, the remainder will be 0, then it is a factor. अगर remainder 0 नहीं आता है, then it is not the factor. So in this case, it is not the factor. Remaining 2 parts you have to do it yourself. नोट कर लिए, मैं रब करने जा रहा हूं बेटा से. Now the question number 2 is also same. बेटा 2 भी बिल्कुल सेम है. 2 में ये बताना है बेटा कि जो gx है, हमें gx और
fx की px की फॉर्म में गिवन है बेटा. आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, जस्ट लुक हियर. मैं समझाया दूं बेटा आपको, सेम वही यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको अलग फॉर्म में लिख दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx मतलब बेटा डिवाइजर, जिससे हमको डिवाइड करना है, इक्वल्स टू x प्लस 1. इन द क्वेश्चन नंबर 2 यूज द फैक्टर थ्योरम. वी हैव टू चेक कि ये gx जो है px का फैक्टर है या नहीं है. वही सेम क्वेश्चन है बेटा, बस इसमें नाम px और gx दे दिया है, सेम वही क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड द जीरोस. मैं जीरोस को फाइंड कर लूंगा बाई like this. So x equals to minus 1 is the zeros of this. Now I am going to put this value in the given polynomial. मैं put कर लेता हूँ बेटा 2 into minus 1 cube plus 1 square minus 2 minus 1 minus 1. Now I am going to solve. ये minus में आएगा बेटा क्योंकि odd power on it. तो 2 into minus 1 minus 2 power even, तो plus में आएगा बेटा minus minus plus and minus 1. Plus 2 minus 2 cancel out, minus plus minus cancel out. The answer will be 0. It means gx is a factor of px. बस इसको इस तरीके से लिख देना है, gx और px की फॉर्म में. ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट इसका करा दिया है एंड रिमेनिंग 2 parts are still left. The remaining parts you have to do it yourself at your home. All right बेटा, इसको रब करने जा रहा हूं बेटा. Just note down this one. Now come to the question number 3. Question number 3 is very easy and very interesting. I'm going to rub this. Just look here. Just look. Find the value of k if x minus 1 is the factor of px. In the question number 3 हमें ऑलरेडी बेटा गिवन है कि x माइनस 1 फैक्टर है किसका, px का. द वैल्यू ऑफ px इज द वैल्यू पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस k. ये हमें गिवन है बेटा x माइनस 1 क्या है बेटा, इसका फैक्टर है. इट इज द फैक्टर ऑफ दिस. तो जब फैक्टर है इट मींस क्या हुआ, इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस, इसको मैं इससे डिवाइड करूं बाय फैक्टर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. ये तो अंडरस्टूड है. इसमें गिवन लिखा बेटा, इसमें चीज लिखी हुई है कि इसका ये फैक्टर है, मतलब फैक्टर है. अगर मैं ये वाली वैल्यू, इफ आई एम गोइंग टू फाइंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1. अगर ये वाली वैल्यू मैं इसमें लगाता हूं तो आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, यस 0 आएगा. क्यों आएगा 0, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसका फैक्टर है. तो कब आएगा 0, ऐसे ही नहीं आएगा बेटा. जब मैं ये वैल्यू लगाऊंगा तब 0 आएगा, कोई और वैल्यू लगाने से नहीं आएगा. अगर मैं 2 लगा दूं तो नहीं आएगा 0, मतलब आ भी सकता है बट ये नेसेसरी नहीं है बेटा, आएगा. ठीक है, और कोई वैल्यू से नहीं बोल रहा है, वो खाली इसके लिए बोल रहा है. अगर मैं ये वैल्यू इसमें लगाता हूं तो 0 आना ही आना है. ठीक है, तो क्या मतलब हो गया बेटा, जस्ट लुक हियर, p1 अगर मैं लगाऊं तो x स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. जब मैं यहां 1 लगा दूंगा तो ये कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है. तो मैं इसके इक्वल टू में 0 लेकर चलूंगा. ठीक है, यहां पे 0 कैसे आया बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे 0 नहीं आ रहा था, हम नहीं लेके चल रहे थे, बिकॉज इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी जस्ट फाइंड कि द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन gx इज द फैक्टर ऑफ px. क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं है, हम वो चेक कर रहे थे. बट इन दिस केस ये हमें गिवन है कि ये इसका पॉलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर है. इट मींस इफ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल तो वो 0 आएगा ही आएगा. मतलब अगर मुझे सारी वैल्यूज नोन होंगी तो आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू विल बिकम्स 0. तो मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया. तो ये 1 प्लस k इक्वल टू 0. तो ये हो गया k प्लस 2 इक्वल टू 0. तो here the value of k will be is equals to minus 2. तो k की वैल्यू बेटा फाइंड हो गई. The value of k is minus 2. 3 parts are still left. Now I am going to write
its third part. I'm going to solve the third part, and remaining you have to do it yourself. So px equals to, तो ये बेटा आपको बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सभी के लिए यही एक ही चीज है, एक बार जीरोस निकालने हर बार वही चलेगा जीरोस, ठीक है बेटा। kx स्क्वायर माइनस रूट टू x plus 1. Now I am going to put this value in the given polynomial. अगर ये वैल्यू बोला है इसमें, अगर मैं x की जगह पर 1 लगाता हूं तो क्या आएगा बेटा, रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। वेरी गुड, रिजल्ट 0 आएगा। तो मैं इक्वल टू 0 लेके चलूंगा अपने, जब मुझे पता है 0 आना है तो मैं उसको पहले से 0 लेके चलूंगा। नाउ आई एम सॉल्व दिस, k into k 1 स्क्वायर, ये हो गया k into 1 मींस k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k को यहीं छोड़ते हैं, बाकी उधर भेजते हैं। तो देयरफॉर k इक्वल्स टू, ये उधर पहुंचेगा बेटा प्लस में हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ k इज रूट 2 माइनस 1, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू हो गई रूट सेकंड थर्ड पार्ट की, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 we have completed 2 parts, and remaining 2 parts you have to do it yourself, alright। so I'm going to rub this, just note down fast, so note कर लें बेटा। now come to the question number 4। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। the question number 4 is factorize the following। हमें क्या करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं बेटा, हाउ टू फैक्टराइज, तो आपको बेटा ये देख के समझना पड़ेगा कि हाउ टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं नोट कर रहा हूं बेटा, फर्स्ट पार्ट कैसा क्या लिखा है, 12x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 1, ठीक है बेटा। अब जस्ट लुक एट दिस कि दिस इक्वेशन इज अ विच टाइप ऑफ इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड ऑल यू नो कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सबको पता है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इट हैविंग अ हायर डिग्री 2, क्योंकि इसकी हायर डिग्री बेटा 2 है, इसलिए ये क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप कैसे सॉल्व करना है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, हम सॉल्व करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट अप, बाय दिस मेथड, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड वी हैव टू सॉल्व। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर देते हैं। स्प्लिट का मतलब हो गया बेटा यहाँ पे ब्रेक, इसको हम ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है बेटा। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा। कैसे करना है ब्रेक, जस्ट लुक हियर। अब फर्स्ट हाउ टू सॉल्व, क्या करना होता है हमें बेटा, जस्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कन्वर्ट, आई एम गोइंग टू राइट दिस ऑर्डर इन अ डिक्रीजिंग फॉर्म, मतलब बड़ी पावर छोटी पावर फिर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है बेटा। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट वैल्यू से कर देते हैं। 12 1 जा 12, अगर 2 होता तो 12 2 24 हो जाता। जो प्रोडक्ट आएगा 12, उसका बेटा एलसीएम लेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे बाय एलसीएम मेथड। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ऑलराइट। अब मुझे 7 क्रिएट करना है बेटा, तो फैक्टर्स मैंने कहां से लाया, ये फैक्टर्स आए बेटा इसके प्रोडक्ट से, बट इन फैक्टर्स का यूज करके, बाय यूजिंग दीज फैक्टर्स मुझे 7 लेकर आना है। मैं फैक्टर्स को मैं लिख के बता रहा हूं आपको बेटा, 2 into 2 into 3, दीज आर द फैक्टर्स। इन फैक्टर्स से मुझे क्या बनाना है, 7 बनाना है, पेयरिंग करके, पेयर बनाकर, मतलब 3 है मेरे पास, तो एक तरफ 2 हो जाएंगे, एक तरफ अकेला आ जाएगा। अगर मान लो ऐसा होता 4 हो गए, तो हो सकता था एक तरफ 3 आते एक तरफ अकेला आता, या एक तरफ 2 आते एक तरफ 2 आते, ऐसा भी हो जाता है। तो मुझे इसको पेयर बनाना है, दो जगह कन्वर्ट करना, 2 जगह डिवाइड करना है। तो अगर जो मैं वैल्यू साथ में लूंगा, इन 2 को साथ ले रहा हूं, इसको अकेला छोड़ दिया मैंने, जो साथ में लूंगा उसकी मल्टीप्लाई करूंगा, जो अकेला लूंगा वो इसमें प्लस करूंगा या फिर माइनस करूंगा। तो प्लस करने पे 8 आया, माइनस करने पे 4 आया, मुझे लाना कितना था 7, नहीं आया,
तो ये फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या करूंगा मैं, अब इन दोनों को साथ में लूंगा और इसको अकेले लेता हूं मैं। 2 2 4 और बचा हुआ नंबर या तो प्लस करना है या माइनस करना है, तो ये 7 आ गया। अगर मैं माइनस करता तो 1 आता, तो नहीं आ रहा है, इससे आ गया। देखिए बेटा किससे आया, 4 + 3, तो 4 + 3 = 7। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर, यू हैव टू राइट द फर्स्ट नंबर लाइक दिस, ऐसे ही लिखना है। लास्ट वाला बेटा आपको ऐसे ही लिख देना है। हमने स्प्लिट किसको किया है, मिडिल वन, तो इन द प्लेस ऑफ मिडिल वन वी हैव टू राइट दिस थिंग, जिससे हमारा आंसर आया। क्या है बेटा, 4 आया, प्लस करने पे 3, ये वेरिएबल साथ में चलेगा बेटा दोनों में, तो 4x + 3x ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक किया है इसको दो पार्ट्स में, तो इस पार्ट को ब्रैकेट में रखेंगे इस तरीके से। नाउ ओपन द ब्रैकेट, वी नो दैट if the negative sign is before the bracket then we have to change all the sign, ये साइन चेंज हो गया, ठीक है बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द कॉमन, आपको इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है, दोनों में क्या क्या कॉमन मिल सकता है। देखिए बेटा 4 × 4 और 4 3 था, तो 4 इज कॉमन एंड बोथ द नंबर हैविंग x वैल्यूज, इसमें 2x है इसमें 1x है, 1x बाहर आ गया। अब 4 3 तो 3 बचा, 2x से 1 बाहर आ गया, 1 अंदर बचा, ये 4x एज इट इज बाहर आ गया। इट मींस जब पूरा पूरा बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो बेटा 1 बचेगा, जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, ठीक है, ध्यान रखना है। हियर कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। नाउ 3x + 1, अब ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट। अब जब मैं माइनस साइन बाहर कॉमन लूंगा तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है बेटा, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस। अगर बाहर मैं प्लस लूंगा तो कोई चेंज नहीं है, अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। और हमें ये भी ध्यान रखना बेटा कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, विद सेम नंबर, सेम डिजिट, सेम वेरिएबल्स एंड सेम साइन। सो अब इन देखिए इस वाले में बेटा ये ब्रैकेट और इसमें ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, तो जो ब्रैकेट सेम आ रहा है उसको कॉमन बाहर निकाल लें। अब बाहर निकल गया, क्या बचा हमारे पास, 4x बचा और -1 बचा, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दें, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फैक्टराइज, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो दिस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन, ऐसे हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। नहीं आया होगा मुझे लग रहा है अभी समझ में आपको सही से, अभी एक दो सम हम और करेंगे तो और अच्छे से इसको समझ जाएंगे बेटा आप लोग। जस्ट नोट डाउन दिस वन एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल, और ये दोनों बेटा निकल कर आए, कितने फैक्टर्स आए बेटा, कितने पार्ट्स आए इसके, ये भी समझना थोड़ा सा। 2 पार्ट्स आए ना, 2 क्यों आए पता है, दिस इनटू दिस 2 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पावर 2 है, जितनी पावर होती है बेटा उतने ही पार्ट्स आते हैं, और इनको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर्स। If 2 parts तो 2 factors are there, if 3 parts then 3 factors निकल कर आएंगे, if 4 parts are there, 4 parts is to be there, तो 4 parts आएंगे, उसके 4 factors आएंगे, ठीक है बेटा। Now come to the next one, तो रब कर रहा हूं बेटा मैं इधर वाले पार्ट को, इसको लिखा रहने दे रहा हूं। एक और देखते हैं बेटा, एंड द रिमेनिंग यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूं बेटा आपको। जस्ट लुक हियर, 6x² प्लस 5x - 6। बेटा मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द लास्ट वैल्यू टू द कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 6 6 36, हमें पता है 6 6 36। नाउ आई एम गोइंग टू फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 36, 18 2 9 3 3 3 and 1। तो दीज आर द फैक्टर्स 2 2 3 and 3, these are the factors। अब हाउ टू सॉल्व, हाउ टू टेक, मतलब इसको किस ऑर्डर में लूं मैं कि मुझे 5 मिल जाए, ठीक है। कैसे मैं बनाऊं इसको, मैं कैसे बनाऊं, किस फॉर्म में लूं मैं, इन फैक्टर्स को किस तरीके से लूं, मैं इन तीनों को साथ लूं, इन 2 को साथ लूं, इसको अलग लूं, ये मुझे 5 लेके आना है, कैसे लेके आना है चेक करते हैं बेटा। लेट्स सी, इफ आई एम गोइंग टू टेक दीस 3 नंबर्स टुगेदर, जो एक साथ लेंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 9 और 9 2 18, और ये 2 18 - 2 16। अब इन एक बार ऐड कर लेते हैं बेटा, दैट इज 20, दोनों से नहीं आए, हमें 5 लेके आना था। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इन तीनों को ले लेता हूं, 2 2 4 4 3 12, 12 + 3 दैट इज 15, 12 - 3 दैट इज 9, इससे भी नहीं आया बेटा। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को साथ ले लेता हूं बेटा, इन दोनों को साथ ले लेता हूं, ठीक है।
या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को साथ ले लो और इन दोनों को साथ ले लो, तो कितना आएगा बेटा 6 + 6 = 12 एंड 6 - 6 = 0। इससे भी नहीं आया बेटा, है ना। तो अब मैं इन दोनों को साथ लेता हूं, इन दोनों को साथ लेता हूं, कैसे 2 × 2 = 4 एंड 3 × 3 = 9 = 13। नहीं आया, सबट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा, इससे आ गया बेटा, इस वाले पार्ट से भी मिल गया ना। तो ऐसा में चेक करना पड़ता है बार बार। अभी आपके हैबिचुअल नहीं है, आप हैबिट में आ जाएगा आपके, तो आपको नीड नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर लिया करेंगे सॉल्व, ठीक है। आप देख के बता देंगे कि इसके ये फैक्टर्स होंगे। तो ये किससे आएगा बेटा, बाय द प्रैक्टिस ओनली। तो जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उससे प्रैक्टिस सही आपका ये आएगा, ठीक है बेटा। तो ये वाला पार्ट आया हमारा, बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूं, हमें बाकी की नीड नहीं है। दिस यू हैव टू डू इन द रफ वर्क, इन द रफ आप रफ में करेंगे। फर्स्ट ऐसे ही नोट कर लें आप, लास्ट वाला बेटा ऐसे ही नोट कर लें। सेकंड नोट क्या करना है, स्प्लिट प्लस ब्रैकेट लगाना है 9x - 4x। नाउ ओपन द ब्रैकेट, here the positive sign is to be there, so no need to change the signs in the bracket portion. Now take the common, here 3 2s और 3 3s, 3 and x कॉमन है, तो 3 2s and 3x एक बच गया, 3 3s 9 और x बाहर आ चुका है बेटा आपका। माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है, 2 2s 4 2 3s 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 2x। और देखिए बेटा माइनस साइन कॉमन लिया मैंने फिर से, तो यहाँ माइनस का प्लस आया एंड 2 3 6। देखिए बेटा ब्रैकेट दोनों सेम आए, हाँ तो सेम ही आएंगे बेटा, सेम ही लेके आ रहे हैं बेटा, सेम ब्रैकेट ही लेके आने हैं, ऑलराइट। वो सेम आएंगे, अगर हम सही कर रहे हैं तो बेटा हमारा आंसर सही आएगा। नाउ टेक दीस टू ब्रैकेट कॉमन, सेम ब्रैकेट है कॉमन निकाल ले बाहर। अब इन द नेक्स्ट ब्रैकेट जो बचा हुआ नंबर है वो दोनों इसमें लिख रहे हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो क्या था बेटा, ये फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड। दीस टू आर नोन एज द फैक्टर्स, इसको फैक्टर्स बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल है हैविंग अ हायर डिग्री 2, तो दैट्स व्हाई कितना आया बेटा इसमें 2 फैक्टर्स विल बी देयर, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टिल लेफ्ट रिमेनिंग, दैट दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एंड रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू डू योरसेल्फ एट योर होम। थैंक यू।